topology? Physically connected devices. And what is logical topology, Ankan? Ankit, what is logical topology? Logical topology means device connected with the network without with wireless, without any wire. That is logical topology. या वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है एक नेटवर्क में, वो लॉजिकल टोपोलॉजी है. कहाँ तक हुआ था? Bus topology स्टार्ट हुआ था. बास टोपोलॉजी हुआ था. डिसएडवांटेज स्टार टोपोलॉजी ठीक है. क्या है डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी का? If the backbone cable is faulty, then whole network will be down. यस. सो यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं. एक बैकबोन केबल, किस तरीके का केबल यूज होता है एज ए बैकबोन केबल? इट्स कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्टेड होता है सारे डिवाइसेस एक दूसरे से. एंड जो बैकबोन केबल होता है उसे एक और नाम कहा जाता है, दैट इज ट्रंक, राइट? So the disadvantage is if it fails, the whole network will go down. नॉट डिटेक्टेड टू और खराब हो जाएगा. very difficult to identify which is true. ओके. Troubleshooting is also very hard. और हम लोग जब पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन मीडिया, तो उसमें क्या पढ़े थे? दैट अगर मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है तो जो केबल का बैंडविड्थ है वो डिवाइड होता है सारे डिवाइसेस के बीच में, राइट? बैंडविड्थ क्या होता है? The amount of data carried. Okay, so that will be divided among all the devices, so it will be less, right? The performance of that particular network will not be that good. Okay, तो अब हम लोग नेक्स्ट टोपोलॉजी में जा सकते हैं. स्टार टोपोलॉजी आप लोग कह रहे हो लास्ट क्लास में ठीक से नहीं हुआ. ओके, स्टार टोपोलॉजी होता क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड स्टार इमेजिन करो किस तरीके का दिखता है. There will be a centralized device and all other devices will be connected to that, right? एक इमेज हम लोग पहले देख लें. See this? तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो स्विच बेस्ड हो सकता है या फिर हब बेस्ड हो सकता है. स्विच और हब क्या है ये हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ेंगे आफ्टर दिस. Then we will discuss elaborately. This is a device which helps you to communicate. Okay. So this is a स्टार टोपोलॉजी जहां पे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है और बाकी सारे नोड्स है, देखो जो इससे कनेक्टेड है, करेक्ट? Devices will be connected with the centralized device by using any kind of cable. It can be either fiber optic cable or copper cable. Then it can be either hub based or switch based. Centralized device क्या हो सकता है? या तो hub हो सकता है या switch हो सकता है. Now at first हम लोग डिस्कस करेंगे what is hub based star topology. A hub is used to connect the devices in the network. It creates physical star topology but logical bus topology.
इसका एडवांटेज क्या होगा स्टार टोपोलॉजी का? Easy to communicate with many. First of all, fault detection will be easy. Fault detection will be easy और इससे दूसरे devices को कोई effect नहीं पड़ेगा. Suppose let's see this image. अगर ये particular node काम नहीं कर रहा है तो इससे क्या इस नोड का कम्युनिकेशन, इस नोड का कम्युनिकेशन, इसका कम्युनिकेशन और इसके कम्युनिकेशन में कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज इंडिविजुअली ये सारे कनेक्टेड हैं centralized devices. So it over here, the advantage of star topology that it is very much reliable. If one cable or device fails, still all other devices will keep on working. It is high performing as no data collision can occur. यहाँ पे कोई data collision का collision means when one signal will collide or at the same time if it collides with it, that is what we consider as collision. So over here यहाँ पे collision का issue कोई issue नहीं हो सकता है. It is less expensive because each device only needs one input output port. Easier to configure. And over here fault tolerance भी fault detection भी आसान होगा because कौन सा device काम नहीं कर रहा है, it can be easily detected. तो ये तो एडवांटेज हम लोग जाने. डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? सोच के देखो. हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि अगर कोई एक डिवाइस काम नहीं करता है तो उससे कम्युनिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक नोड काम नहीं करता है तो. बट लेट्स इमेजिन अगर वो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस फेल हो जाए तो कम्युनिकेशन कोई भी नोड कहीं से भी कर पाएगा. सो दिस इज द मच यू कैन से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है that if the centralized device fails, the whole network will be down. There will be no communication between another nodes. और कुछ? बहुत सारा केबल लग सकता है. हाँ, kind of. And यहाँ पे आपको एक जो centralized device add करोगे, उसका एक अलग से cost भी लगेगा. Because that will be hub or switch. एक centralized device आप उस networking device वहाँ add कर रहे हो, that will increase the cost of that topology. It is not that cost efficient. और जो परफॉर्मेंस होगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क का वो डिपेंड किस पे करेगा? जो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होगा उस पे. If it's hub or switch, the performance will always depend on that particular centralized device for that network. Means for that topology. अदर जो हम बस टोपोलॉजी हम लोग डिस्कस किए अभी उसके कंपैरिजन में इसमें ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस भी होगा because the centralized device will require maintenance of frequent preventive maintenance. troubleshooting तो खैर troubleshooting और preventive maintenance में क्या डिफरेंस है? मेंटेनेंस करते हैं कि कुछ खराब होने से पहले जो प्रिकॉशन लेते हैं. कुछ खराब हुआ, troubleshooting कुछ डिवाइस में कुछ खराब हुआ उसके बाद. ओके, ठीक है.
कुछ पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखोगे, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टोपोलॉजी. So these are the advantages of the star topology, which you can see right here. एक टोपोलॉजी को देख के भी आप उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज थोड़ा फिगर आउट कर सकते हो, इफ यू विल थिंक अबाउट इट. रिपीट करो, जस्ट ट्राई टू से इट बाय योरसेल्फ. व्हाट कैन बी द एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है स्टार टोपोलॉजी का. सुनो. स्टार टोपोलॉजी का और पॉल्यूशन नहीं होता. और दूसरा दिखाएं, क्या एडवांटेज हो सकता है. अमित. और easy fault finding. Same is to find out. इसके अलावा अंकन. एक डिवाइस खराब हो जाने के बाद हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. और अंकित. High performance. डिवाइसेस को रिमूव करना भी, किसी एक नोड को रिमूव करना भी आपके बाकी परफॉर्मेंस को, बाकी के नोड्स को इंटरप्ट नहीं करेगा, because it has no connection whatsoever to another node. It can separately be removed, right? Now what are the disadvantages? Costly और requires more things. कॉस्टली क्यों होगा. हार्डवेयर भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें एक हम लोग को एक सेंट्रलाइज डिवाइस हब या स्विच चाहिए होगा. सो दैट्स व्हाई इट विल एनहांस द कॉस्ट. और अब खराब हो जाने से पूरा सिस्टम. अगर सेंट्रलाइज डिवाइस, सी स्टार टोपोलॉजी कैन बी बोथ. इट कैन बी इधर हब बेस्ड और एक स्विच बेस्ड, राइट. तो ये दोनों ही हो सकता है. तो डोंट से अगर हब खराब हो गया या अगर स्विच खराब हो गया, तो यू कैन से अगर सेंट्रलाइज डिवाइस खराब हो गया तो इट विल ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क, करेक्ट. उसके अलावा और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज. requires more cable. Just note down 3 points from both. अभी ठीक है.
कॉग्निसेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपके ऊपर? हिंदी में नहीं, अकर मतलब क्वालि होना एंड हैपन, हिंदी मतलब टकराना, कोलाइड करना। मैं वो इनपुट आउटपुट IO डिवाइसेस पढ़े हो आप हार्डवेयर में? इंटरनेट स्टैंडर्ड बॉडी, इंटरनेट स्टैंडर्ड बॉडी माने कोई भी देश, कोई भी गवर्नमेंट का अंदर से नहीं होगा। ये पब्लिक बॉडी है, इसका मेंबर कोई भी हो सकता है। ये है कि फ्रॉम एनी नेशन, है ये तो इंटरनेट में अवेलेबल टेक्नोलॉजी को एक स्टैंडर्डाइज करता है, ठीक है। जैसे लाइक आईपीवी also came IPv4. Some technologies are standardized by IPv4 and some technologies are standardized by IPv4. IPv4 mainly man-based technology को standardize करता है, IPv4 mainly internet based technology को standardize करता है। टेक्नोलॉजी को सबको रिक्वेस्ट करता है, यू नो मोर अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, लेकिन उनकी भी नहीं है, नो मोर देन हो सकता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन डाला होगा, यू कैन अपडेट दैट, एंड यू वेरीफाई है ना, उसको कैसे नहीं कर हो गया? Just
ऑनलाइन में क्लियर है सभी को ये? मैम अभी नहीं हुआ है लिखना। अच्छा, ऑनलाइन जो हम लोग ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं ऑथराइज कर सकते हैं। नंबर 1 4 5 1 2 4 ऑब्जर्वेशन थोड़ा जल्दी लिखो। ये notebook draw the image as well. एक sorry, start topology. Done? No. हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ. दैट विल बी मेश टोपोलॉजी. अभी तक तुम लोगों में से किसने हॉबी वीडियो नहीं भेजा? और को आप वो भेजोगे? अंकित एक बार बाकी जो लोग एब्सेंट हैं उन लोगों से अभी ये कर लेना. हम भी मैम आज भेज देंगे.
देवेंद्र, हाँ मैम बोलिए। हॉबी वीडियो आपका भी नहीं आया है, काइंडली सेंड इट। ओके। Okay, so अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेश टोपोलॉजी, हाउ इट लुक्स लाइक। पहले मुझे आपको इमेज शो करने दो। ये एक ऐसा टोपोलॉजी होगा जिसमें सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ओके, इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ मेश बाय कनेक्टिंग टू ईच अदर। All nodes will be connected with each other. Look at this. ये देखो यहाँ पे there are multiple links formed between all the nodes. दिख रहा है? Basically what is हाँ Centralized. नहीं, ये दो तरीके का होता है, एक पार्शियल मेश और दूसरा फुल मेश। ऑलराइट, वो क्या होता है देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मेश टोपोलॉजी? इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर इन विच ईच नोड्स, मतलब नोड्स जितने भी डिवाइसेस होंगे, जितने भी कंप्यूटर एंड डिवाइसेस होंगे, विल बी कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। दैट इज नोन एज मेश टोपोलॉजी। अगर हिंदी में इसे बोले तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी डिवाइस, जितने भी कंप्यूटर होंगे, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। किस तरह का टोपोलॉजी वो कहा जाएगा? अभी mesh topology. Mesh topology is of two types. One is partial mesh, another one is full mesh. Full mesh मतलब each device has to connect it with each other. Means if we have three devices like this, if we have, suppose we have 5 devices like this, this one is connected with this इससे भी connected है, इससे भी connected है, इससे भी connected है. There is one individual link from each device to one another. सारे devices के साथ एक अलग सा individual link है, that is known as full mesh topology. मैम वो साइड वाला ये देखो, बीच का स्टार मार्क छोड़ के जो साइड वाला नहीं, ये स्टार मार्क नहीं है, ये लिंक शो कर रहा है। दिस इज द कनेक्शन। मीन्स ये डिवाइस देखो, ये इससे भी कनेक्टेड है। मैम यहाँ सब पीछे से कनेक्टेड है। हाँ, जितने भी नोड्स हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसमें कोई हब एक सो इट इज मेश का मतलब क्या होता है? एक जाल जैसा क्रिएट होना, राइट? सो इट इज कनेक्टेड विथ ईच अदर। यहाँ पे देखो, सभी जितने भी डिवाइस आपको दिख रहे हैं, जितने भी नोड्स हैं, वो सबका एक इंडिविजुअल लिंक सभी डिवाइसेस के साथ जा रहा है। अमित इधर देखो स्क्रीन पे, तो इस डिवाइस, इस तरह का कनेक्शन में फायदा क्या, एडवांटेज हो सकता है? व्हाट कैन बी द एडवांटेज? कॉस्ट से सारे को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट कम है। इसमें कॉस्ट कम लगेगा। कैसे कम? इट विल बी वेरी कॉस्टली आर्किटेक्चर। ये काफी कॉस्टली होगा, बिकॉज देयर आर मोर लिंक्स यू नीड टू क्रिएट। जितने को भी आप कनेक्ट करोगे, यू विल रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, राइट? ज्यादा कुछ लगेगा ना आपको। पर्टिकुलर हर लिंक के लिए यू विल नीड मोर केबल टू गेट कनेक्टेड। इट विल बी हाईली एक्सपेंसिव। इसमें बस केबल लगेगा, और जो टोपोलॉजी था वो उसमें तो हब लग रहा था और वायर भी लग रहा था। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मीन्स वहां पे आपको एक डिवाइस का कॉस्ट आप ये कर रहे हो, बट यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस आपके पास ज्यादा होगा। जस्ट कंपेयर इट विथ अदर टोपोलॉजी, इट विल हैव मोर फॉल्ट टॉलरेंस। कैसे होगा ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंस? फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस मतलब प्रॉब्लम
प्रॉब्लम कितना कम हो सकता है, मीन्स किसी चीज में फॉल्ट क्रिएट होगा तो वो काम करना बंद कर देगा। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स इट कैन बी मोर रिलायबल, उस पर आप ज्यादा रिलाई कर सकते हो, वो ज्यादा रिलायबल रिसोर्सेज होगा। कैसे होगा? बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर लिंक डाउन होता है, still the communication will happen because it has another way to communicate with, it has another way to get connected with each other। अगर एक पर्टिकुलर लिंक, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर मान लो ये वाला लिंक डाउन हो जाए, दिस लिंक इज नॉट वर्किंग, स्टिल यहाँ से कम्युनिकेशन हो सकता है, इट कैन गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट, यहाँ से यहाँ जा सकता है। अगर ये भी डाउन होता है तब भी हमारे पास और रास्ते हैं। Did you get it? The fault tolerance will be much higher over here। यहाँ पे fault tolerance बहुत होगा, तो ये बहुत reliable भी होगा, करेक्ट। इस तरह का टोपोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव भी होगा, बिकॉज तुम तो यहाँ 5 नोड में देख रहे हो, इमेजिन इट विथ मच मोर डिवाइसेस, so you can understand how much costly it can become। और सोचो कुछ। डेटा कम्युनिकेशन बहुत इजी होगा। हाँ, that will be, यहाँ पे आपको द सेम थिंग, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, रिलायबिलिटी अच्छा होगा, फॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा होगा। अगर एक लिंक फेल हो जाता है तब भी बाकी अदर वेज विल बी देयर टू गेट कम्युनिकेटेड विथ दैट पर्टिकुलर नोड, विथ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। आया समझ में? अमित, आया आपको? तो क्या वो बताओ फिर से, क्या एडवांटेज हो सकता है मिस टोपोलॉजी का? एक खराब हो जाए तो दूसरे के साथ एक लिंक खराब हो जाएगा तो अगर एक लिंक फेल होता है तब भी हमारे पास, तब भी उस पर्टिकुलर डिवाइस, तब भी उस पर्टिकुलर नोड के पास अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करने का वे रहेगा, राइट। और क्या एडवांटेज है अमित? फॉल्ट टॉलरेंस, वो ठीक ही बोल रहे हो, बोलो। फॉल्ट टॉलरेंस हाई है ना। ओके, और को एक आप बताओ। परफॉर्मेंस अच्छा डिसएडवांटेज क्या होगा? कॉस्टली आर्किटेक्चर होगा, राइट। नाउ द सेकंड वन जो हमने देखा, दैट इज व्हाट? मैम इसका मैम एडवांटेज होगा, इसमें कोई हाफ और स्विच नहीं रहता है, इसीलिए मतलब दैट्स व्हाई ये खराब होने के चांस कम रहता है। मतलब नहीं, इस वजह से खराब होने का चांस कम होता है, ये आप नहीं मेंशन करोगे। सेंट्रलाइज डिवाइस यहाँ पे नहीं है तो वो तो एक डिफरेंट, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजी ऑल टुगेदर। ये टोपोलॉजी ही डिफरेंट है, स्ट्रक्चर ही इसका डिफरेंट है। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अगर एक लिंक डाउन हो भी जाता है, देन हमारे पास अदर, देन ऑल्सो दैट वो डिवाइस के पास और अदर लिंक्स होंगे, कनेक्शंस होंगे, जिससे कि कम्युनिकेशन उसका स्टॉप नहीं होगा, करेक्ट। आप उस ड्राइंग को ध्यान में रखोगे, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकता है। इसके साथ हम स्टार्ट टोपोलॉजी के कोई मतलब ये नहीं कर सकते ना, मतलब स्टार्ट टोपोलॉजी ऐसा था कि सबका अलग एक एडवांटेज है, सबका एक अलग यूज है। जब पूरा टोपोलॉजी आप समझोगे तो आपको एक फिर हम लोग जानेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर लैब में या इस पर्टिकुलर जगह पे किस तरह का टोपोलॉजी आप यूज करते हो। यू कैन नॉट कंपेयर, आप कंपेयर करोगे, डिफरेंसेस तो आप ऐसे ही बता सकते हो। उसमें एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है, इट डजंट हैज एनी सेंट्रलाइज डिवाइस। वहां पे फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? हाँ, द फॉल्ट टॉलरेंस सेंट्रलाइज जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें अगर सेंट्रलाइज डिवाइस फेल होता है, पूरा कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस इस तरीके से डाउन, फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब कम्युनिकेशन इस तरीके से डाउन नहीं हो सकता है कि कुछ एक खराब हुआ और कंप्लीट ही बंद हो गया सब कुछ। जैसे आप लोग ये देख रहे थे कि अगर कोई बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या था? अगर कम्युनिकेशन स्टॉप हुआ तो आपके पास फिगर आउट करने का तरीका बहुत मुश्किल है कि कहाँ से एरर आ रहा है, राइट। या अगर
ट्रंक डैमेज हो गया, द कोएक्सियल केबल जिसके थ्रू वो कनेक्टेड है, बैकबोन केबल, वो डैमेज हो गया, द होल कम्युनिकेशन विल स्टॉप, राइट? द मेश टोपोलॉजी डज नॉट हैज दोस काइंड्स ऑफ डिसएडवांटेज। द डिफरेंसेस आप इस तरीके उसके बारे में बताओगे। अगर आप डिफरेंस कोई आपसे पूछता है, और पूछेगा ही, देयर आर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वाइवा में भी, तो आप इसके बारे में बताओगे क्या है स्टार टोपोलॉजी, और उसके बाद इसके बारे में बताओगे कि क्या है मेश टोपोलॉजी, या फिर रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, जिस भी चीज के बारे में पूछा जाए। नाउ व्हाट इज पार्शियल मेश? फुल मेश तो हम लोग जान गए कि सारा डिवाइस सारे के साथ कनेक्टेड होगा। सबके साथ कर यहाँ पे नॉट नेसेसरली विल बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, मीन्स ये पार्शियल मेश क्रिएट करेगा। तो ये फुल मेश के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होगा, बिकॉज हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। हम लोग एक इसमें देखते हैं इसको, पार्शियल मेश। मीन्स लाइक दिस, ये देखो, ये फुल मेश है, जहां पे जितने भी नोड्स आपको दिख रहे हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज पार्शियल मेश। यहाँ पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मल्टीपल लिंक्स है। यहाँ भी फॉल्ट टॉलरेंस हाई होगा इन कंपैरिजन टू अदर टोपोलॉजी, बट इट इज नॉट कनेक्टेड विथ, सारे नोड्स सारे के साथ कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। तो ये लेस एक्सपेंसिव होगा इसके कंपैरिजन में। ये पार्शियल मेश टोपोलॉजी है। ओवर हियर आप देख रहे हो कि इन कंपैरिजन टू मेश टोपोलॉजी, इन कंपैरिजन टू फुल मेश, अगर आप फुल मेश टोपोलॉजी से कंपेयर करोगे इसे, तो यहाँ पे सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मतलब अगर ये इसको आप मेश में कन्वर्ट करोगे तो जस्ट इमेजिन, एक यहां से भी आएगा एक लिंक, राइट? देयर विल बी वन लिंक फ्रॉम दिस वन ऑल्सो, एक इससे भी जाएगा, राइट? मीन्स 4-5 लिंक्स और क्रिएट करने होंगे इसमें, देन इट विल बिकम फुल मेश। तो ये कम कॉस्टली होगा फुल मेश के कंपैरिजन में। अभी समझ में आया? चलो, समझ में आया तो वेरी गुड। ठीक है, इसको नोट करो। अगर कहीं भी कुछ समझने में कंफ्यूजन है तो मुझे पूछो फिर से। अमित आया समझ में? हाँ। ठीक। निशान? यस मैम। नहीं, निशान। मैम फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है मैम? फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? मतलब प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करने का क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसी को फॉल्ट टॉलरेंस कहेंगे। ठीक है मैम। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होता है लिंक नेटवर्क में, तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा। अगर उसका एक ऑल्टरनेटिव वे है, उसका एक दूसरा तरीका भी है प्रेजेंट कम्युनिकेट करने का, तो मतलब वहां पे फॉल्ट टॉलरेंस ज्यादा है। इसका एग्जैक्ट हिंदी नहीं मालूम। समझ में आया क्या है फॉल्ट टॉलरेंस? यस मैम, आ गया। मतलब टॉलरेट करने का कैपेसिटी। टॉयलेट करने का मतलब क्या है ना,
नहीं 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 नहीं, टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना। এখন মনে পড়লো इसको जो भी वर्ड टफ लगे ना उसको आसान सा इंग्लिश के ही इसमें समझने का कोशिश करोगे तो तुम्हारा टेक्निकल टर्म थोड़ा सा आसान होगा। मतलब वो ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से हो नहीं सकता है, होगा। बस हर चीज का बस हिंदी कन्वर्जन मत ढूंढो, उसको उसी लैंग्वेज में समझने का कोशिश करो। ना इसका कोई डेफिनेशन नहीं है है ना। स्टार टोपोलॉजी का भी 1 सेकेंड। डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, ये लो, अब फुल मेश टोपोलॉजी यहाँ लिखोगे। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड और दो, मैं पार्शियल मेश का भी एक डेफिनेशन आपको ठीक है, अभी विजिबल है सभी को। चलो राउटर के बीच में एक पासवर्ड की शेयर्ड पासवर्ड है, तो आइडेंटिफाई दैट कि मैं सही पर्सन को ही रिक्वेस्ट करने के लिए भेजा, पता चला कि तुमने रिक्वेस्ट भेज दिया, कोई थर्ड पर्सन आके तुम्हारा रिक्वेस्ट नहीं चला, दोनों के बीच में पहले पासवर्ड एक्सचेंज करें। जब ये रिक्वेस्ट कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, राउटर जब सर्वर को भेजेगा ना, तो सर्वर चेक करेगा कि मेरा पासवर्ड मुझे किसने भेजा है, उसका पासवर्ड कॉमन है, कोई मैं उस लॉगिन रिक्वेस्ट को चेक में डालूंगा। दैट्स व्हाई मुझे पासवर्ड का जरूरत है। लेकिन लॉगिन चेक करना पड़ेगा।
वो इसलिए डॉक्यूमेंट करोगे तब मैं तुमको भेज दूंगा। इसलिए ये बनाना है ऑथेंटिकेशन एरिया जो भी पहले से ही रहता है पैकेज में करोगे एक प्रैक्टिकल इसकी पैकेज में करने वाले रियल टाइम में एक बार तो हो गया रियल टाइम में उसको एसीएस फाइल जैसे ही करें बस तू अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस का ध्यान दे उसमें ऑथेंटिकेशन रेगुलर ग्रुप के मेंबर आते हैं बाकी एक मतलब लॉगिन का होता है वो जो यूजर में होता है फोटोशूट जिनका भी है वो थोड़ा देर तक उठना। रेगुलर सिस्टम पेपर अच्छा नहीं है ये वो लॉगिन करेंगे पूरा यूजर लॉगिन नहीं ठीक है जाता हूं हाँ सभी को मिलेगा। जल्दी लिखो जल्दी। मैम स्टार टोपोलॉजी का डिफिनेशन नहीं है मैम। अच्छा ये लिख लो उसके बाद मैं वो भी बता देती हूँ। डन। निकल आए थे ना कंफर्म को एक्शन था यस सर प्रैक्टिकल बोल रहा तो पीडी में जो कल एब्सेंट था सर वो आज भी एब्सेंट है, नया कोई नहीं आया है पहले। देवेंद्र ऑनलाइन है, कल नहीं था प्रेजेंट शायद। देवेंद्र का शायद बाकी है। देवेंद्र हाँ मैम। आपका वेलकम किट का पेमेंट अभी पेंडिंग है। वेलकम किट कलेक्ट किए आप? मैम नहीं किए, अभी तक नहीं किए मैम, कर लेंगे। वेलकम किट में जो आपको मिलेगा ना वो मोस्टली फर्स्ट मॉड्यूल में ही यूज करना होता है। फर्स्ट मॉड्यूल टू सेकंड मॉड्यूल। उसके बाद उसमें जो भी टूल्स है जो भी रहेगा उसका कुछ खास यूटिलाइजेशन नहीं है। तो अगर टाइम पे लोगे तो आप यूज भी कर पाओगे। तो कोई एक डेट बताओ जिस डेट पे आप यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट है वेलकम किट का वो पे करके आप उसे कलेक्ट करोगे। मैम बाद में डेट बताने से होगा, आपको हम बता देंगे, मैसेज कर देंगे। देखो 26 के अंदर ही लेना है, ठीक है। 26 तुम लोगों के लिए लास्ट है, डेडलाइन है। तो 26 के अंदर किसी डेट को आकर के वो तुम्हारा कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इन लोगों ग्रुप में मैसेज किया ना वेलकम किट वाला। तो आईडी कार्ड आपके पास तो नहीं है ना? आईडी कार्ड तो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, आईडी कार्ड होना चाहिए सबके पास।
आईडी जो कार्ड भी आपके पास नहीं है, बाकी साइबर मीडिया में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अगर नहीं है। निशांत आप कल थे? कल था। नहीं हाँ सीधे सर हम पापा को पता है, पापा बोले हैं। अच्छा अच्छा। पापा से बात करके बताएगा क्या बोला पापा। अच्छा इसमें तो याद है वही बोला पापा। अभी अभी तो नहीं कर पाएंगे। पापा बोले हैं कि अगले मंथ में देखते हैं। नहीं होगा अगले मंथ, इसी मंथ में करना है। बैच स्टार्ट डेट क्या है मैडम? मई मई में स्टार्ट हुआ है तो 24 अप्रैल है एक्चुअली स्टार्ट। 24 सितंबर की। इस मंथ में लेना है। पापा को बोलो आने के लिए, भैया जो भी तुम्हारा बोल रहे हैं उनको आने बोलो। एडमिशन का टाइम में नहीं बोला गया था, नहीं बोला गया था क्या? बोला गया। तो तुम लोग नहीं ले रहे हो इसलिए तो बोलना पड़ रहा है, नहीं कर रहे हो इसलिए बोलना पड़ रहा है। एक्चुअली ये बोलने का बात नहीं है, आपका भी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो जो भी प्रॉब्लम है जिसका घर में, पापा बोल रहे हैं या फिर भैया बोल रहे हैं, उनको आके मिलने के लिए बोलो। पीटीएम किए हैं लोग। हाँ सर, पीटीएम हुआ। और तुम्हारा ऐसा बोला, और किसी का घर में बात करके बताओगे बोले तो? सर 24 तारीख 24 तारीख को तुम्हें करो। तुम्हारा नाम क्या? अंकुर कुमार। अंकुर। ठीक है। और देवेंद्र का क्या डेट है देवेंद्र का? देवेंद्र एक डेट आप बता दो, सर पूछ रहे हैं। मैम ये मंथ मेरा नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ लेने से नहीं होगा क्या? नहीं, इसी मंथ में 26 तारीख के अंदर ही करना है। नेक्स्ट मंथ में हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ में पूजा का मंथ है, तो उसमें वेंडर जो बनाता है ये प्रोडक्ट वो नहीं बनाएगा। उसके बाद तो फिर सेरेमनी आ जाएगा ना, पूजा के बाद दिवाली को। डेट तो सेरेमनी का वही है ना। 17 नवंबर। ऐसे थोड़ी ना कि तुम पेमेंट आज करोगे आज तुमको मिल जाएगा। आप पेमेंट करोगे, ये आपका रिक्वायरमेंट हेड ऑफिस में जाएगा, हेड ऑफिस से फिर आएगा। 15 डेज 20 डेज लगता है आने में। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। तो पहले से करना पड़ेगा ना। घर में बात करो और बात करके बताओ फिर। वर्किंग है सर। अच्छा वर्किंग हो तो अरेंज करो इसी तरह से। कितना पे करना है? 3295। इतना ही तो पे कर सकते, देख लो। अगर अरेंज कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस तरह ठीक है सर। से नहीं होगा। और और कोई बताएगा तो घर में बात करके बताओगे। सबसे ज्यादा पेंडिंग इसी बैच से है मैडम आपका। बाकी लोगों से सर हम लोग स्टार्टिंग में जब बात की थी एडमिशन के बाद, वो जो सलमान अंकल है वो बोले थे कि स्टॉक आउट है, जब आएगा तब लेना। स्टॉक आउट नहीं रहता है। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे स्टॉक इन स्टॉक आउट का कुछ है नहीं, क्योंकि ये हमारा ये सेंटर जो है वो रीजनल सेंटर है, इट्स नॉट अ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस हमारा मुंबई में है। तो आप जब पेमेंट करते हो तब आपके नाम का ऑर्डर जाता तो है। आपका नाम का रिक्वायरमेंट जाता है हेड ऑफिस से, फिर वहां से फिर वो आता है। जैसे जैसे जिसका पेमेंट हो रहा है उन लोगों को मिल रहा है। आपके लिए हमेशा स्टॉक आउट ही रहेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करते। तो उस टाइम पे कर दिए तो तब तक आ गया होता। हाँ आराम से। 15 डेज तो लगेगा कम से कम आने में। भाई भाई अब वो कुरियर आता है, समझ रहे हो? इसलिए मैं पहले से पेमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस बैच में सबसे ज्यादा आप लोगों का पेंडिंग है 372, जबकि ये पुराना बैच, नया बैच सारा दे दिया है वो लोग। और एक्चुअल में अगर देखें तो ये हार्डवेयर नेटवर्क खत्म होने के बाद उसके अंदर जो टूल किट मिलता है ना, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्क्रू ड्राइवर सेट हो गया, केबल टेस्टर हो गया, केबल हो गया, क्रीम्पर हो गया, सब कहाँ पे यूज होगा? यहीं पे यूज होगा जो टॉपिक आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। सर्वर सीसीएनए लिनक्स में क्या लगेगा? वो सब नहीं लगेगा, वो रखा ही रह जाएगा घर में बाद में जब लोगे तो। प्रैक्टिकली तो लेना है, लेकिन टाइम में लोगे तो उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। टाइम के बाद लेके कोई इसका कोई फायदा नहीं है। सब चीज का टाइम होता है।
ठीक है। और कौन है मैडम? और एक दूसरा है, मतलब वो बैकअप के लिए यहाँ है, अजय अजय हेला। अजय हेला कौन सा बैच से है? गुगल मैम का 350 या कोई बैच है। हे অজয় হেলা, তোমার হয়েছে? मिला या नहीं मिला? मतलब पेमेंट कर दिए और नहीं मिला ऐसा कोई नहीं है ना बैच में? सबको मिल गया ना? कृतिका को शायद पे की थी उसको अभी तक नहीं मिला। कब पे की है? वो पूरी तरह मोर देन 15 डेज हो गया तो एक बार आके बात करने के लिए बोलो। काफी सारा स्टॉक आया है तो अभी। अच्छा, आज वो आई नहीं है इनके एग्जाम आ जाना। हाँ पेमेंट कहाँ पे करना है? अकबर होगा ना? या आप ऑनलाइन करके मुझे ऑनलाइन कर दो ना पे, और स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दो। स्कैनर कौन सा जो गेट पे लगा रहता है? एक बार अकबर से जाके बात करते हैं। नहीं, अकबर सर के के पास जो स्कैनर रखा रहता है उसी पे, या फिर मैं लिंक भेज दूंगी, लिंक से पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। देख लो बात करके, और जिसको सही में दिक्कत है वो तो कमिटमेंट तो ले तो लोगे ही, फिर बाद में वो नल वल फिट करने के काम में आएगा ड्राइवर वगैरह। चलो लिखना हो गया ये। स्टार टोपोलॉजी का डेफिनेशन आप लोगों को नहीं मालूम चला। ये लो। Note down this star topology definition. क्या हो गया तुम लोग को? पूरा सुबह से ही बात में लगे हुए हो। Just finish it off. Define ये है। यहाँ ऑनलाइन अभी ये लोग बोला था पापा से या घर में बात करके बताएगा। सर वो पापा ने बोला उससे हम फिर पूछे कुछ देर पहले, कुछ नहीं बोला ये, सिर्फ वही मुझे लगा उसका डेट हो गया है क्लियर, इसलिए मैं भी नहीं समझी। बोलो। मासे सेशन আচ্ছা শেষ চলে এসেছে তাহলে আজকে 21 তারিখ, শেষ আর কবে আসবে? 27 তারিখে হবে না, 26 তারিখের আগে ডেট দাও। অনেকে 27 তারিখে ডেট দিয়েছো তোমরা, 27 তারিখে হলে হবে না, 26 তারিখে অর্ডার যাবে। हम बैच में 26 তারিখটাই লাস্ট চেষ্টা করো, 26 তারিখের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করো, বুঝলে? सर हम यदि क्यूआर कोड यदि मैं एक्चुअली पे कर दी হ্যাঁ অনলাইনে পেমেন্ট করে স্ক্রিনশটটা পাঠিয়ে দেবে, আর আর বিল কিন্তু পাবে, এরকম না যে ইনভয়েস দেবে না, ইনভয়েস আমি অনলাইনে পেটা করে দেবো, তাহলে স্ক্রিনশটটা পাঠিয়ে দেবো, তাহলে আমি নেক্সট আমার मंगलवार दिन क्लास है। हाँ बिल आप उस दिन कलेक्ट कर लेना। बिल तो रिसिप्ट आप कलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ हम yes। दीपावली का बोला कितना तारीख? 26 तारीख हम लिख दे रहे हैं उसका। और अमित बोला हाँ अमित रंजन तो बोला, मैं बोला कि लेकर के आओ, भैया भैया बोले ना, भैया को बोला आने के लिए, पापा को बोला आने के लिए। हाँ ये निशांत क्या बोला? निशांत बोल रहा है इस मंथ में नहीं होगा, तो पापा को बोलते हैं बात हाँ हाँ करने के लिए।
और निशांत, आप पापा को बोलिए एक बार आने के लिए। या फिर ठीक है बात मैम। भी कर सकते हैं फोन पे। या फोन पे बात कर लेने के लिए बोलिए। ओके मैम, आपसे ना या सर से? मैम से, राशि मैम से। ओके मैम। राजश्री मैम से बात करने को बोलो। हमारा बात करना नल एंड वॉइड है। हम जस्ट मैसेंजर ऑफ दिस। ओके, हो गया। हम लोग क्या डिस्कस किए आज? 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। Start topology और next topology. क्या है स्टार टोपोलॉजी? Where all devices are connected with To hub a and centralized device. Switch or hub. It can be either hub based or switch based, right? अब एडवांटेज डिसएडवांटेज ध्यान में रहेगा क्या है, राइट? What is mesh topology? Connected all the device in Where all the devices, it is of two types, full mesh, partial mesh. Full mesh में all the devices will be connected to each other, right? Directly to each other. तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? बहुत कॉस्टली होगा ये, राइट? जस्ट इमेजिन 30-35 डिवाइस है, 50 डिवाइस है, उसको अगर इतने सारे लिंक्स होंगे कितना एक्सपेंस पड़ेगा, राइट? सो दैट इज, और जो हब बेस्ड टोपोलॉजी, जो स्टार टोपोलॉजी है, उसमें एक सेंट्रलाइज डिवाइस का ही कॉस्ट होता है। रेस्ट कौन सा? वहां पे ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है, राइट? ट्विस्टेड पेयर केबल, बिकॉज लैंड में हम लोग जानते हैं कि लैंड केबल जो बनाए थे तुम लोग, राइट? तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है, तो वो केबल सस्ता आता है, इसलिए दैट इज नॉट दैट कॉस्टली। गॉट इट? सो मेश टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या हो जाएगा? हाई इन रिलायबिलिटी, हाई इन परफॉर्मेंस, हाई इन फॉल्ट टॉलरेंस, राइट? एक्सप्लेन भी कर सकते हो कैसे परफॉर्मेंस हाई होगा। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, अगर तुमको समझ में आ गया है तो तुम बता पाओगे। फॉल्ट टॉलरेंस हाई कैसे होगा? अगर एक लिंक डाउन भी होता है तो बहुत सारा उसका अगर कनेक्शन है कम्युनिकेशन का, कभी भी कंप्लीट फेलियर नहीं होगा उस नेटवर्क का, राइट? पार्शियल मेश क्या होगा? these devices are connected but not directly. Means not necessarily all devices will be connected to each other. मतलब multiple links वहां भी होंगे, but सारे होंगे जरूरी नहीं है। That is partial mesh. less costly होता तो है। लेस कॉस्टली होगा फुल मेश के कंपैरिजन में, बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम ही होगा, मतलब थोड़ा कम, बट कह सकते हो कि इसमें भी फॉल्ट टॉलरेंस होगा ज्यादा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, रिलायबिलिटी होगा। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फास्ट टोपोलॉजी में थोड़ा बस टोपोलॉजी अब तो टाइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बस एंड रिंग टोपोलॉजी हमारा